Good morning, students. So today we'll start with English Literature, Chapter 1, Who Did Patrick's Homework? So as you can see, there is one picture on the left side of your slide. This boy name is Patrick. This is the main character of this story. And two more characters are there. This small man who is known as Elf and one cat, right? And now the story is given by Carol Moore. He is the writer of this story. And before proceeding with this chapter, I would like to ask you one question. As this chapter title say that who did Patrick's homework? यानी कि Patrick का homework किसने किया? Question mark. Okay. We'll get to know about this in this story. And you all get homework, whether it is holiday homework or on the daily basis you get homework. Now, like now also you get one assignment as an homework. So you all do homework. Sometimes you find it quite interesting, sometimes you find it boring, and there are few students who might think that homework is boring and they don't like to do that. Okay, so this story is also talks about that this character Patrick also finds homework very boring. He doesn't like to do homework like most of you students might find it. And homework, sometimes you take help of your parents also. आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प लेते हो अपना होमवर्क करने के लिए. समटाइम्स यू डोंट फील लाइक टू डू होमवर्क, सो आपके पेरेंट्स आपका होमवर्क कर देते हैं. ओके, सो इन दिस स्टोरी वील टॉक अबाउट इट. ओके, so let's get start with the story. So as you can see, there is one picture. He is Patrick, and you can see he is holding a stick of hockey. Okay, so we'll get to know why he is holding that. So let's start with this. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey, basketball and Nintendo instead. सो अब क्या है, पैट्रिक जो है वो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. उसको होमवर्क बहुत बोरिंग लगता था. एज ही हैज सेड हियर आल्सो, टू बोरिंग. whenever the things comes to homework, or whenever his parents or his teachers ask him to do homework, he every time, each and every time, he says too boring. He doesn't like to do homework, and instead of doing homework he likes to play hockey. उसको हॉकी खेलना बहुत पसंद था, तभी उसने देखो यहाँ पे स्टिक भी पकड़ी हुई है हॉकी की अपने हाथों में. ही लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल, उसको बास्केटबॉल खेलना पसंद था. एंड निंटेंडो इंस्टेड. निंटेंडो भी एक तरीके की गेम होती है. नाउ कम टू द ग्लॉसरी पार्ट, डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. एज यू कैन सी, सो पिंक कलर में आपको ये वर्ड दिखाई देगा, निंटेंडो. ये भी एक वीडियो गेम होती है, जैसे आपने खेली होगी. आपके घर पे प्ले स्टेशन टाइप होता है, आप उसमें मारियो और बहुत सारी गेम्स खेलते हो. वैसे ही निंटेंडो भी वीडियो गेम होती है, right? So he likes to play all these games instead of doing homework. उसको homework करना बिल्कुल पसंद नहीं था. Then his teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. फिर एक दिन उनकी टीचर्स ने उनको बोला, पैट्रिक को, कि आप अपना होमवर्क किया करो, अदरवाइज आप कभी भी कुछ नहीं सीख पाओगे. You won't learn a thing. आप कभी भी किसी चीज के बारे में नहीं जान पाओगे, ना ही सीख पाओगे. तो इसलिए बहुत जरूरी है होमवर्क करना. तो ये सुनने के बाद जब उसने अपनी टीचर से ये सारी बातें सुनी, तो उसको भी लगने लग गया. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही फील लाइक एन ignoramus, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. लेकिन जब उसने टीचर से ये सारी बातें सुनी, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा लगने लग गया कि हाँ, आई थिंक I don't know anything because I don't do my homework, I don't do learning, I don't understand anything. So maybe I am an ignoramus. Ignoramus का मतलब क्या होता है? Look at the glossary. An ignorant person who lacks education. जिसको पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं पाता है, और जिसको दुनिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, right? So he is an ignorant person. So ignoramus is a person who lacks study, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, and he doesn't know much about the world and things. Okay, so उसको कभी कभी लगता है कि वो एक ignoramus person है, क्योंकि उसको ज्यादा पढ़ाई में कुछ नहीं आता है. लेकिन क्या किया जाए, वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसको तो होमवर्क पसंद ही नहीं है, right? Then moving on to the next paragraph. Then one day he found his cat playing with the
little doll and he grabbed it away. Grabbed मतलब एकदम से छीन लिया उसने. तो एक दिन क्या होता है, उसकी कैट जो होती है बिल्ली, वो खेल रही होती है एक डॉल के साथ, छोटी सी लिटिल डॉल के साथ. तो पैट्रिक देख लेता है और पैट्रिक कैट के हाथों से, उसके पंजों से उसको छीन लेता है, लिटिल डॉल को ग्रैब कर लेता है. एंड जब वो देखता है, टू हिज सरप्राइज, इट वाजंट अ डॉल एट ऑल. लेकिन वो डॉल नहीं होती है, वो क्या होता है, बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. तो वो क्या होता है, एक छोटी सी साइज का आदमी होता है. टाइनीएस्ट समझते हो, जो सबसे छोटा होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, सबसे छोटा साइज का एक आदमी होता है. और वो बहुत देख के हैरान हो जाता है कि ये तो डॉल नहीं, ये तो कुछ और ही है, और ये तो लाइव मतलब जीता जाता एक इंसान है. देन ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, और उसने छोटी सी, उसने क्या पहनी होती है, वूल. वूल यानी कि गरम शर्ट पहनी होती है, ऊन की. एंड विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस. ओल्ड फैशन यानी कि ब्रिचेस क्या होता है, यू कैन सी द मीनिंग एट द बॉटम. ब्रिचेस का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर्स. जैसे पैंट्स होती हैं वैसे ही, क्योंकि वो छोटे साइज का होता है तो उसके ऊपर छोटे साइज की ही पैंट्स आएंगी. तो छोटे साइज की ट्राउजर्स उसने पहनी होती है, जो कि बहुत ओल्ड फैशन यानी कि पुराने टाइप की, पुराने जमाने की होती हैं. ओके. एंड अ हाई टॉल हैट, और उसने एक बहुत बड़ी सी हैट पहनी हुई होती है, जो आपकी कैसी होती है, जैसे विचेस पहनती है. लाइक यू मस्ट हैव सीन स्टोरीज ऑफ सिंड्रेला एंड अदर स्टोरीज, स्नो वाइट काइंड ऑफ स्टोरीज. तो उसमें आपने देखा होगा कि जो विचेस होती हैं, यानी कि जो जैसे जो चुड़ैले होती हैं, उनकी पास जो हैट होती है, दैट काइंड ऑफ हैट ही वॉज वेयरिंग, दैट लिटिल मैन. ओके. देन ही येल्ड मतलब चिल्लाना. वो चिल्लाता है छोटा सा आदमी, और क्या कहता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई विल प्रॉमिस यू दैट. तो अब वो क्या कहता है कि प्लीज, वो पैट्रिक से रिक्वेस्ट करता है दैट प्लीज सेव मी, मुझे वापस मत दो इस कैट को, मैं तुम्हारी सारी विशेस पूरी करूंगा, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, आई विल प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ. जब ये चीज आती है तो पैट्रिक का भी दिमाग चल जाता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है कि मैं इससे कुछ भी मांग सकता हूँ, राइट. एंड यू मस्ट हैव गेस्ड इट कि वो सबसे पहले क्या मांगेगा, अपने होमवर्क से रिलेटेड विश मांगेगा. और जो एल्फ होता है, यानी कि जो छोटा टाइनीएस्ट मैन है, वो भी क्यों कहता है ऐसा करने को, क्योंकि उसको कैट के हाथों में नहीं जाना होता. कैट क्या करेगी, वो उसके ऑब्वियसली जो पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, वो उसको नोच देगी, उसको हार्म कर देगी टाइनीएस्ट मैन को. तो इसलिए अपने आप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए वो पैट्रिक से हेल्प मांगता है कि मुझे अब बचा लो, मुझे वापस मत दो कैट को, और इन रिटर्न मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा विश ग्रांट करके. ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Now, third paragraph. Patrick could not believe how lucky he was. He Here was the answer to all of his problems. अब क्या होता है, वो इतना खुश हो जाता है, वो कहता है कि वो कितना भाग्यशाली है, कितना लकी है. उसको विश्वास नहीं होता कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है. एंड अब उसको उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर मिल जाता है. एंड वो क्या कहता है, सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. और अब वो क्या कहता है उस टाइनीएस्ट मैन से, पैट्रिक कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैट से बचाऊं, सेव करूं, तो तुम्हें जो है मेरी हेल्प करनी होगी और मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा 35 डेज के लिए, जब तक मेरे फाइनल एग्जाम्स नहीं हो जाते और मेरा ये फाइनल सेशन, ये क्लास खत्म नहीं हो जाती, तब तक तुम मेरा होमवर्क करोगे. एंड ही सेज, इफ यू डू अ गुड जॉब आई कुड गेट इवन एज. और वो कहता है कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो हो सकता है कि मुझे ए भी मिल जाए. ओके. देन नेक्स्ट पैराग्राफ. द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dish cloth. तो जो छोटा सा आदमी होता है, wrinkled यानी कि एकदम से उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो सुनता अरे ये क्या हो गया, ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि होमवर्क करने का मतलब है कि उसको सारे सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, मैथ, सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड सो मेनी थिंग्स ही हैज टू डू. तो जो छोटा मैन होता है, लिटिल मैन,
वो उसके चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, वो परेशान हो जाता है कि अरे ये मैं कैसे करूंगा, मैंने बोल तो दिया कि मैं विश ग्रांट करूंगा लेकिन अब मैं करूंगा कैसे। तो उसके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं जैसे डिश क्लॉथ पे आते हैं जब आप उसको हैम्पर में फेंकते हो। सो एज यू कैन सी द मीनिंग एट द बॉटम, डिश क्लॉथ होता है जो आप यूज करते हो वॉश करने के लिए अपने डिशेज, यानी कि जब बर्तन साफ करते हो उसके लिए जो आप कपड़ा यूज करते हो उसको डिश क्लॉथ कहते हैं। और हैम्पर होता है जो बास्केट होती है विद अ लिट, लिट मतलब ढक्कन। तो आपने देखा होगा कि जब आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आप किसी बास्केट में डाल देते हो, है ना, उसका ढक्कन उठाते हो और उसके अंदर डाल देते हो। और उसको कैसे डालते हो आप उन गंदे कपड़ों को, आप उसको क्रश करके डालते हो, है ना, रिंकल्स आ जाते हैं ऐसे। आप उसको एकदम अच्छे से फोल्ड करके तो नहीं रखते, राइट। तो ऐसे ही जैसे उस क्लोथ के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं जब आप उसको क्रश करते हो, वैसे ही उस लिटिल मैन के फेस पे भी रिंकल्स आ जाते हैं क्योंकि वो परेशान हो जाता है। रिंकल्स कब आते हैं, जब आप बहुत परेशान हो जाते हो कि अरे ये करना पड़ेगा। तो ऐसे ही लिटिल मैन परेशान हो जाता है। फिर वो क्या कहता है, ही किक्ड हिज लेग्स, वो अपनी लात जो है उस पे किक करता है। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अपने हाथ ऐसे घुमाता है। और क्या कहता है, ही ग्रिमेज्ड एंड स्क्वॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओह am I cursed but I'll do it। ठीक है, और वो क्या कहता है, you can see the meaning, grimaced, scrawled, pursed his lips, यानी कि अपने मन ही मन में बड़बड़ाता है। his face had these expressions showing disgust, anger and disapproval। एक तो उसको गुस्सा आ रहा होता है और वो नहीं चाहता होता ये विश ग्रांट करना और ये काम करना, लेकिन उसके पास कोई चारा ही नहीं होता। वो बोलता भी है कि ओह एम आई कर्स्ड, यानी कि मुझे किसी ने कर्स किया। कर्स क्या होता है, जब किसी को आप बददुआ दे देते हो या श्राप दे देते हो, तो उसको ऐसा फील होता है कि उसको किसी ने श्राप दे दिया या कुछ बुरा उसके ऊपर डाल दिया। तो लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उसको अपने आप को कैट से बचाना होता है। तो वो क्या कहता है, ठीक है मैं ये कर दूंगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, फिफ्थ। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपने वर्ड्स पे बिल्कुल पक्का रहता है लिटिल मैन। द लिटिल एल्फ, एल्फ क्या होता है, एज यू कैन सी विद पिंक लेटर्स, एल्फ मतलब जैसे आप कहानियों में देखते हो, स्टोरीज में एक छोटा सा क्रिएचर होता है जिसके बहुत पॉइंटेड से ईयर्स होते हैं और जिसके पास मैजिक पावर्स होती हैं, है ना। आपने बहुत सारी स्टोरीज में देखा होगा एल्फ। जैसे आपने उसमें देखा होगा दैट स्टोरी स्नो वाइट एंड द सेवन ड्राफ्ट्स, है ना। तो जैसे ड्राफ्ट्स होते हैं छोटे छोटे, एल्व्स भी होते हैं, उनके पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, उनके पास मैजिक पावर्स होती हैं। तो ऐसे ही ये भी एल्फ ही होता है क्योंकि ये भी छोटा सा होता है, छोटी सी पैंट्स इसकी होती है, ट्राउजर्स एंड वुडन, इसने जैकेट पहनी होती है एंड हैट पहनी होती है, और इसके पास मैजिक भी होता है, तभी ये विश ग्रांट कर पाता है पैट्रिक की। ओके, सो देन लिटिल एल्फ जो है शुरू कर देता है पैट्रिक का होमवर्क करना। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। अब ग्लिच का मतलब क्या होता है, ग्लिच का मतलब भी आप यहाँ देख सकते हो। ग्लिच का मतलब होता है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली, यानी कि प्रॉब्लम। इन सिंपल वे, जब आपकी कोई मशीन है, वॉशिंग मशीन है या कुछ क्लॉक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सेल वीक हो जाते हैं तो वो रुक जाती है। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम होती है। वो शुरू तो कर देता है पैट्रिक का होमवर्क करना, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, लेकिन एल्फ को पता नहीं होता कि उसको हमेशा क्या करना होता है, क्योंकि होमवर्क, अब वो तो स्कूल जाता नहीं, उसको तो पता नहीं कि क्या होमवर्क मिल रहा है, किस तरीके से होमवर्क कर रहा है। वो तो उसी को पता होगा जो स्कूल और क्लास अटेंड करता है। सो एल्फ को समझ नहीं आता कि होमवर्क करना कैसे है, एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको पैट्रिक की हेल्प की जरूरत होती है। तो वो क्या बोलता है, हेल्प मी ही सेड। ओके, वो बोलता है पैट्रिक को मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती है इन वॉट एवर वे, जिस तरीके से भी वो उसको पूछता है या बोलता है। ओके, देन आई डोंट नो दिस वर्ड। अब एल्फ क्या करता है, वो बोलता है एक बारी कि मुझे इसका तो मतलब ही नहीं पता और ये शब्द ही नहीं पता कि है क्या ये। द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। एक दिन वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा होता है और एक वर्ड आता है, वो कहता है ये तो मुझे पता ही नहीं, ये वर्ड क्या होता है, इसका मतलब भी नहीं पता। सो वो उसको क्या बोलता है, गेट मी अ डिक्शनरी, जाओ जाके डिक्शनरी लेके आओ, मैं पता करता हूँ। ठीक है, नो व्हाट्स इवन बेटर, वो कहता है नहीं रहने दो, क्या उससे भी बेटर ये चीज है, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो वो कहते हैं रहने दो डिक्शनरी छोड़ो, तुम बोलो एक एक उसका लेटर
और मैं उसकी साउंड से जोड़कर उसको समझ जाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ऐसा होता है, एल्फ जो होता है क्या करता है, धीरे धीरे पैट्रिक से ही काम निकलवाना शुरू कर देता है। अब उसको ट्रिक पता होती है कि ठीक है, पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तभी उसने मुझे दे दिया सारा होमवर्क। तो एल्फ भी बहुत क्लेवर होता है, वो सारा काम खुद ना करके धीरे धीरे बोल बोल के पैट्रिक से ही काम निकलवा लेता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, अब ये तो चलो बाकी सब्जेक्ट्स की बात हो गई, अब बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में पैट्रिक का बिल्कुल भी हाथ नहीं सही होता, ही वॉज आउट ऑफ लक, उसकी कोई किस्मत काम नहीं करती, वो कभी भी अच्छे से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। व्हाट आर टाइम टेबल्स, तो अब टाइम टेबल्स क्या होते हैं, एल्फ को पता ही नहीं होता, ठीक है। द एल्फ श्रिंक्ड, वो कहता है कि ये क्या होता है टाइम टेबल, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। वी एल्स नेवर नीड दैट, हम एल्स को तो कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, फ्रैक्शंस, ये सब क्या होते हैं, ये तो मेरे को कभी भी नहीं, मैंने सुने, कभी पढ़े ही नहीं। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, इधर आओ, एल्स क्या बोलता है पैट्रिक को, इधर आओ मेरे साथ यहाँ आके बैठ जाओ और मेरी मदद करते रहो, मुझे धीरे धीरे गाइड करते रहो कि कैसे कैसे क्या करना है। else know nothing of human history, अब बात आती है एसएसटी की, अब उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है, उनके लिए तो ये मिस्ट्री होती है, मिस्ट्री का मतलब एक पहेली होती है कि अरे ये क्या होता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, वो एल्फ जो होता है वो बहुत शाउटर होता है, यानी कि हर चीज के लिए बहुत तेज चिल्लाता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे बहुत लाउड हो जाता है, जस्ट गॉट लाउडर, और क्या बोलता है, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, more and more books and you can help me read them too। अब वो क्या करता है, पैट्रिक को वो बिल्कुल परेशान कर देता है, ठीक है। अब मैथ्स की बारी आती है तो वो कहता है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टाइम टेबल्स क्या होते हैं, हिस्ट्री की बात आती है तो कहता है कि हिस्ट्री क्या होती है, ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, ये तो हमारे लिए पहेली है, मिस्ट्री है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। धीरे धीरे उसकी आवाज और ज्यादा तेज होती जाती है और वो धीरे धीरे पैट्रिक को ऑर्डर्स देने लग जाता है, लाइब्रेरी जाओ, ये वाली बुक लेके आओ, यहाँ जाओ, ये वाली बुक लेके आओ, फिर इसमें से वर्ड्स पढ़ो, इसमें से लेटर्स पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो, मुझे पढ़ के बताओ, फिर मैं करूंगा तुम्हारा होमवर्क। तो धीरे धीरे एल्फ जो है सारा काम पैट्रिक से ही करवाने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट, नाउ यू कैन सी, here is Patrick, he is reading all the books and books are piled up here on the table. Here is elf, you can see the hat on his head like of witches, in the stories of children you must have seen witches wearing this kind of hat, right? So elf ने भी ऐसी hat पहनी हुई है एंड वो क्या कर रहा है, अगेन यू कैन सी वो पैट्रिक को कमांड्स दे रहा है कि ये पिक्चर बताओ मुझे क्या है, इसको पढ़ के बताओ, यहाँ से ये बुक लाओ, वहां से वो बुक लाओ। तो क्या होता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे जो लिटिल एल्फ होता है वो धीरे धीरे उसको नैक करने लग जाता है पैट्रिक को। नैक का मतलब क्या होता है, come to this pink letter word, someone who troubles all the time by complaining or asking them to do something। तो नैक का मतलब होता है जब कोई आपको परेशान करता है, या तो कंप्लेन कर करके कि तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, या तो तुमसे कुछ ना कुछ काम निकलवा के। तो यहाँ पर एल्फ क्या कर रहा था, पैट्रिक से रोज कुछ ना कुछ काम निकलवाता रहता था कि ये वाली बुक लेकर आओ, लाइब्रेरी जाओ, डिक्शनरी निकालो, ये वर्ड बताओ, ये लेटर बताओ, इसकी साउंड बताओ, इसको पढ़ के बताओ मुझे, है ना। तो रोज उससे काम निकलवाता रहता था। तो नैग यानी कि परेशान करना, ट्रबल करना किसी को। पैट्रिक जो था वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने लग गया था, कहाँ वो बिल्कुल भी पहले पढ़ता नहीं था, होमवर्क नहीं करता था, और अब उसने हार्डवर्क करना शुरू कर दिया था। एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो ही इज रीडिंग अ बुक, राइट, than ever and was it a drag, he was studying up night, वो रातों रात पढ़ने लग गया, रातों रात वो पढ़ता रहता था जाग जाग कर। had never felt so very, वेरी मतलब थकावट जब हो जाती है कि जब आप जैसे एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम्स में भी आप लेट नाइट तक पढ़ते हो तो आप थक जाते हो, नींद नहीं पूरी होती है ना। तो थका टूटा वो अगले दिन स्कूल भी जाता था, उसकी आईज जो है वो पफ्ड एंड ब्लेरी, ब्लेरी का मतलब हेयर इट इज रिटन जब आपकी आंखें रेड हो जाती हैं, आप थके होते हो, नींद पूरी नहीं होती, आपको ढंग से दिखाई नहीं देता है ना। तो वो रातों रात पढ़ता था पैट्रिक और फिर अगले दिन उठ के स्कूल भी जाता था, ठीक है। देन कम टू द 8th पैराग्राफ, फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, और उसके बाद फाइनली आखिरी दिन आ जाता है स्कूल का, एल्फ का टाइम होता है जाने का, वो मुक्त हो गया होता है, ही वॉज फ्री टू गो, वो आजाद हो जाता है जाने के लिए।
और जैसे ही एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, और होमवर्क जो है अब कोई मिलना नहीं होता क्योंकि स्कूल खत्म, नो स्कूल नो होमवर्क, तो खत्म हो जाता है और एल्फ के जाने का भी टाइम आ जाता है. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर. तो क्या होता है, जिस दिन होमवर्क खत्म होता है, स्कूल का आखिरी दिन होता है, तो सीक्रेटिवली यानी कि बिल्कुल चुपचाप बिना किसी को कानों खबर हुए एल्फ जो है पीछे के दरवाजे से निकल जाता है और भाग जाता है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ कमिंग टू द 9th पैराग्राफ. पैट्रिक गॉट हिज एज. अब क्या होता है, पैट्रिक क्योंकि पूरी रात रात जागकर पढ़ाई करता है एल्फ के लिए, तो अब उसके सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिलते हैं और उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो अमेज हो जाते हैं. दे वर अमेज्ड, अमेज्ड मतलब सरप्राइज, दे वर शॉक्ड दैट अरे ये तो बिल्कुल होमवर्क भी नहीं करता था एंड नाउ ही हैज स्कोर्ड सो वेल. लाइक इट कुड हैपन विद यू एज वेल. कभी होता है कि आपके जो क्लासमेट्स हैं, you must have seen that they don't do any homework, they don't respond in the class, but they at the end or in the exams, final exams, they must have scored well. है ना, तो आप भी सरप्राइज और अमेज्ड हो जाते हो एकदम से कि एकदम से इसके अंदर इतना बदलाव और चेंजेस कैसे आ गए, एंड हाउ डज ही अचीव दिस. ओके, सो उसकी जो टीचर्स होती हैं वो उसको देख के स्माइल करती हैं एंड उसको बहुत सारी शाबाशी और बहुत सारी एनकरेजमेंट देती हैं. ठीक है, पैट्रिक को. और उसके पेरेंट्स का क्या, उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि एकदम से पैट्रिक को हुआ क्या, व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, ये एकदम से इतना चेंज कैसे हो गया, कहाँ ये होमवर्क नहीं करता था, ही हेट्स टू डू होमवर्क एंड नाउ ही हैज scored so well, he has scored A grade in each and every subject. Okay, he was now the model kid. Kid मतलब बच्चा, a child. Okay, now model क्या होता है, जो सबके लिए एक एग्जाम्पल होता है. Like जैसे आपकी टीचर्स भी जो है क्लास में आपको कभी कभी बोलती होंगी कि बी लाइक दिस पर्सन और डू लाइक दिस पर्सन. ओके, कि इसके जैसा काम करो या इसके जैसे बनो, है ना. मॉडल किड जो एक एग्जाम्पल होता है, हु डज ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली, है ना, जो अच्छे से काम करता है, होमवर्क टाइम पे करता है, पंक्चुअल होता है, क्लीनिनेस होती है, हर चीज में अच्छा होता है. ओके, सो अब पैट्रिक भी एक मॉडल किड बन जाता है, यानी कि वो बहुत अच्छा हो जाता है. वो सारा अपना रूम साफ करता है, ही क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, कोर्स मतलब घर के काम भी करता है, ही डू एवरीथिंग जो उसको पहले बोरिंग लगती थी. ही वाज चेयरफुल, वो खुश भी रहता है, कभी भी किसी से बुरी तरीके से बात नहीं करता, नेवर रूड. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगा कि वो उसके अंदर कुछ बिल्कुल ही अलग आ गया, हर चीज को वो अब एक अलग नजरिए से देखने लग गया. as you can see the meanings, attitude का मतलब a feeling about something or someone, तो किसी के बारे में जैसे आप सोचते हो या फील करते हो. तो अब बिल्कुल ही इस एपिसोड के बाद, एल्फ वाले एपिसोड के बाद बिल्कुल ही पैट्रिक चेंज हो गया. वो अपना सारा काम खुद करता है, अपना रूम साफ करता है, घर के काम भी करता है, वो सारे काम भी करता है जो उसको पहले बहुत बोरिंग लगते थे. एंड नाउ ही हैज डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. ओके, सो नाउ last, you see in the end Patrick still thought that he had made that tiny man do all his homework. और लास्ट तक जो है पैट्रिक को लगता रहा कि उसने एल्फ से अपना सारा होमवर्क कराया है और उसने खुद नहीं किया. लेकिन यहाँ पर बट आई शेल अ सीक्रेट, तो यहाँ आए कौन है, आपके राइटर कैरल मोर. ओके, तो वो क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको, वो रीडर से कह रहे हैं कि मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ जो सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगा. इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, ये सारा पैट्रिक ने खुद से किया है. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. तो अब हमें पता चला, जो क्वेश्चन था चैप्टर का, जो टाइटल था हमारी स्टोरी का, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो किसने किया, पैट्रिक ने खुद ही किया. सो एल्फ वाज समवन, वो एक मीडिएटर था जिसने सिर्फ उससे बोला कि वो होमवर्क करेगा, लेकिन करवाया उसने सारा का सारा पैट्रिक से ही. पैट्रिक को ये लगता रहा थ्रू आउट कि एल्फ उसका काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एल्फ उसको बोलता था ये बुक लेके आओ, वो बुक लेके आओ, डिक्शनरी लेके आओ, और रातों रात पैट्रिक जाग कर पढ़ता था, एल्फ नहीं पढ़ता था, है ना. और थका टूटा हुआ फिर वो अगले दिन स्कूल भी जाता था. सो पैट्रिक ने सारा पढ़ाई करी, सब कुछ समझा, सारी बुक्स पढ़ी एंड उसने अपना होमवर्क खुद ही किया. ओके, एंड देन ही स्कोर्ड सो गुड मार्क्स. ओके, so now I hope this chapter would be clear to you. Go through this story once again and thank you for listening to me.